Today we have the rival theory, the rival philosophy of empiricism, the rival theory or philosophy with the rationalism. Rationalism. Rationalism and empiricism. These two are rival philosophies in a sense that one focuses on mind, on thinking, on intellect, on rationalism, on rationality, on logic, on deductive logic, while the other is focusing more on senses, on experiences. So one is more theoretical, while the other is more practical. Rationalism is more theoretical because it resolves issues with thinking process, while empiricism says that no, it is just not thinking, it is also doing, learning by doing, or experiential learning, or experience. That is highly essential. If you just think and think and think, and you try to solve the issues by thinking, by using your mind, yes, we do critical thinking and we resolve issues by discussions, by thinking. We do nothing, but the problems are resolved. But empiricism, that is totally against this approach, and they say that we must use our senses, not our mind or intellect or critical thinking or reasoning or logic. For example, you have an issue or problem. So how do you solve that problem? You think over it. Okay. For example, you want to achieve something, you want to pass an exam, or you want to have some good relationship with a human being. So how you do things? You think over it, you plan, you do critical thinking, you use logic, you use rationality, and the problem is resolved. But empirical approach is a different thing. Empirical evidence. Empirical evidence. For example, whether God exists or not, the best approach in philosophy, in past especially, that was rationalism. They used to prove God by rationality, by discussion, like the Holy Quran or Bible or other holy books. That is just discussion. That is just asking you to think over it. Who created this universe? There must be a creator. So we have this approach of rationalism. But the opposite of this is empirical evidence. Show me, demonstrate, prove where it is. Where is God? Can I touch God? Can I see God? Can I taste God? Can I, all the five senses that we have? And the same is with any idea or anything in life. So because of empiricism, science was developed. Francis Bacon was the first empiricist who gave the scientific method. Scientific method. Out of the dark ages in Europe, Francis Bacon was the first one who talked about empiricism. Yes, Aristotle was there in the past. Plato was more rationalist and idealist, while Aristotle was more empiricist. He was more practical, he was more scientific. Now, we have three important philosophers who have worked on empiricism, and because of empiricism, we have got science. Now, this is a very technical point, that when we talk about inductive logic or we talk about scientific method, so that is logic. Logic is the study of truth,
what is true and what is false. So logic is one approach. Reality, what is reality, what does exist, what does not exist, that is another approach, and that is called ontology. While epistemology is interested in knowledge, how can we know, what do we know, what is the nature of knowledge, what are the limitations of knowledge, this is given by epistemology. So we can look at the same thing from different angles, from logic point of view, from ontology, and from epistemology. But things are similar. For example, in logic, deductive logic is similar to rationalism. Inductive logic or scientific method is similar to empiricism. So empiricism, we have the tabula rasa theory of Locke, Locke. Locke was an empiricist. He was against Descartes. He was against rationalism, that there are innate ideas, that human being is born with the essentialism. तो फिलासफी में ये, अगर आपको फिलासफी की गहराई की समझ आती है, तो फिर आप मुख्तलिफ किस्म की फिलासफीज को एक दूसरे के साथ अटैच कर सकते हो. मसलन आइडियलिज्म के साथ कौन सी फिलासफी आप अटैच करोगे? रेशनलिज्म. ठीक है, आइडियलिज्म, रेशनलिज्म, डिडक्टिव लॉजिक, ये सारा आइडियाज पे चलता है. ठीक है, जब आप सेंसेस की बात करते हैं, हवास की बात करते हैं, तजुर्बे की बात करते हैं, तो फिर उसमें क्या आता है? एम्पेरिसिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म और प्रेगमेटिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म, ये प्रैक्टिकल किस्म की फिलासफीज है. एसेंशियलिज्म जो है वो रेशनलिज्म के साथ जाती है कि इंसान जो है वो एक खास एसेंस के साथ पैदा हुआ है, एक खास जौहर के साथ, एक खास मकसद के साथ, और ये फिर रिलीजन के करीब है, क्योंकि रिलीजन भी कहता है कि इंसान को हमने एक खास मकसद के लिए पैदा किया है. तो ये रिलीजन जो है वो इन चीज़ों पे ज़्यादा जोर देता है. और जब भी कोई रिलीजन की बात होती है, तो फिर वो रेशनलिज्म से खुदा को साबित करने की कोशिश करते हैं, आइडियलिज्म से खुदा को साबित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एम्पेरिसिज्म में तो फिर कोई गुंजाइश नहीं है. हाँ, एक जो साइंटिस्ट फिलासफर है जो अभी बाद में हम पढ़ेंगे, वो बड़ा यूनिक है. उसने जो है एम्पेरिसिज्म से भी गॉड को प्रूव करने की कोशिश की है. सो लॉक हमें ये कहता है कि भाई नॉलेज जो है वो कहाँ से आता है. वो कहता है कि नॉलेज जो है वो सेंसेस से आता है, वो हवास से आता है, वो एक्सपीरियंस से आता है. बच्चा जब पैदा होता है तो खाली डब्बा होता है, वो टेब्यूलर ऐसा होता है, वो क्लीन स्लेट होता है, वो खाली तख्ती होती है, उस पर कुछ नहीं होता, वो एक गोश्त का लोथड़ा पैदा होता है. तो फिर उसकी फैमिली और फिर उसकी सोसाइटी और स्कूल और कॉलेज जो है उस पर मुख्तलिफ चीज़ें लिखते हैं और उस इंसान की पर्सनालिटी बन जाती है. तो ये एम्पेरिकल है, ये प्रैक्टिकल चीज़ है. क्योंकि हम देखते हैं कि अगर मैं इंग्लैंड में पैदा होता तो मैं डिफरेंट होता, मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ तो मैं डिफरेंट हूं. क्यों? माहौल की वजह से. वरना फिर तो सारे इंसान एक जैसे होते. ठीक है, फिर तो सारे लोग मुसलमान होते, सारे लोग जो है खुदा को मानते, सारे लोग एक ही खुदा को मानते, एक ही मजहब पे होते, एक ही सिस्टम पे चलते. हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ क्यों है? हर सोसाइटी दूसरी सोसाइटी से मुख्तलिफ क्यों है? वो इसलिए मुख्तलिफ है कि उनको मुख्तलिफ चीजें फीड की जाती है. सो दिस इज द टेब्यूलर रेसा थियरी ऑफ Locke. Another important philosopher is Berkeley. Berkeley is a highly interesting philosopher, very deep philosopher. He is also for idealism. Berkeley ये प्रूफ करता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज फिजिकल नहीं है, सारी चीजें जो है वो मेंटल है, वो आइडियल है. सामने आपको नईम खान नजर आ रहा है, अगर मैं आपके सामने बैठा होता तो ये आपके माइंड की वजह से है कि आप नईम खान को समझते हैं. अगर आपका माइंड ना होता तो आपके लिए नईम खान एग्जिस्ट नहीं करता.
जब आप मर जाते हैं तो आपकी माँ, आपकी सब कुछ खत्म हो जाते हैं। तो ये सारी गेम जो है ये माइंड का है। ठीक है, तो इसको यो आइडियलिज्म भी कहता है, सब्जेक्टिव आइडियलिज्म। ये भी बर्कले का वो है, अप्रोच है। लेकिन इसका जो मशहूर नाम है वो है इमेटीरियलिज्म। इमेटीरियलिज्म कि मैटर नहीं है। इमेटीरियल का मतलब क्या है? नो मैटर, देयर इज नो मैटर। एंड हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाई ही इज कंसिडर्ड टू बी एन एम्पेरिसिस्ट। अगर वो इतना आइडियलिस्ट है कि वो मैटर को मानता ही नहीं है, तो फिर वो एम्पेरिसिस्ट कैसे बन गया? ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और इसको जब आप नोट्स पढ़ोगे और आप बर्कले को और लॉक को जब आप विकिपीडिया में पढ़ोगे कि ये लोग क्या थे, तो बड़ा मजा आएगा आपको। लेकिन आपको टाइम निकालना पड़ेगा इनको पढ़ने में। तो बर्कले ये कहता है कि परसेप्शन इज इंपॉर्टेंट, टू बी इज टू बी परसीव्ड। प्लीज राइट अ कमेंट। टू बी इज टू बी परसीव्ड। शेक्सपियर कहते हैं ना कि टू बी और नॉट टू बी इज द बिग प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। टू बी और नॉट टू बी। तो ये एक बहुत मशहूर बात है शेक्सपियर की। और टू बी और नॉट टू बी ये अंटालॉजी है कि भाई कौन सी चीज़ मौजूद है, कौन सी चीज़ मौजूद नहीं है, क्या खुदा मौजूद है, क्या खुदा मौजूद नहीं है। ये जो स्टडी है इसको अंटालॉजी कहते हैं। कौन सी चीज़ मौजूद है, कौन सी चीज़ मौजूद नहीं है। तो हम कौन सी चीज़ समझते हैं, कौन सी चीज़ हम नहीं समझते, किस चीज़ के हमारे पास नॉलेज है, किस चीज़ के हमारे पास नॉलेज नहीं है, ये एपिस्टेमोलॉजी है। तो बर्कले कहता है कि भाई नॉलेज के लिए परसेप्शन ज़रूरी है, परसीव करना। नईम खान को ये जो 3-4 लोग सुन रहे हैं, नईम खान इन लोगों के लिए मौजूद है। जो उनको नहीं सुनता उनको क्या पता कि नईम खान कौन है। जो नईम खान को जानते नहीं है ना उसको सुनते हैं, तो उनके लिए नईम खान का नॉलेज जो है वो तो नामुमकिन है। तो बर्कले ये कहता है कि अगर किसी जंगल में दरख्त गिर गया और उसके गिरने की आवाज़ जो है किसी ने नहीं सुनी, तो ये दरख्त गिरा ही नहीं है। क्योंकि जब हम दरख्त गिरता है उसकी आवाज़ हम सुनेंगे तो फिर वो नॉलेज है। नाच, वो क्या कहते हैं, मोर जो है नॉलेज, जंगल में नाचा, किसने देखा? असल चीज है परसेप्शन, देखना। नईम खान 20 ग्रेड का ब्यूरोक्रेट है और थक गया कि जी फिलॉसफी का क्लास है, एम्पेरिसिज्म है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी 3-4 लोग बैठे होते, उसको कोई सुनेगा नहीं, तो उसको किसी के उसकी वैल्यू का क्या पता चलेगा। तो नईम खान कुछ लोगों के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। और वो ये कहता है कि भाई हर चीज के लिए परसेप्शन जरूरी है। परसेप्शन जो है वो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई चीज़, फिर वो ये कहता है कि यार एक इंसान जो है वो किस किस चीज़ को परसीव करेगा, उस पर क्रिटिसिज्म ये है। ठीक है, आप तो मुझे सुन रहे हैं, आपके लिए तो मैं मौजूद हूँ, आप तो मेरे बारे में जानते हैं, लेकिन हर बंदा मेरे बारे में नहीं जान सकता। अब एक अमेरिका में बंदा बैठा है, कनाडा में बंदा है, उसने CSS नहीं करना, तो उसके लिए नईम खान की क्या अहमियत है। तो फिर वो यहां से गॉड को प्रूव करता है कि क्योंकि ये खुद बिशप था, ये चर्च का बंदा था, तो फिर वो कहता है कि गॉड क्योंकि हर चीज को देख रहा है, इस वजह से वो चीज जो है वो एग्जिस्ट करती है या उसके हमारे पास नॉलेज है। तो ये जो परसेप्शन है ये हम किस चीज से परसीव करते हैं? ये हम आंखों से परसीव करते हैं। हम देखते हैं, टच करते हैं, टेस्ट करते हैं, स्मेल करते हैं। सेंसेस जो है हवा से खमसा के जरिए हम इन चीज़ों को टच करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। तो इस वजह से वो चीज़ें मौजूद है। तो इस वजह से बर्कले जो है वो एम्पेरिसिज्म में आ गया। हालांकि ये है आइडियलिस्ट, टॉप का आइडियलिस्ट है।
वो माइंड के बाहर कोई चीज को मानता ही नहीं है और इसको प्रूव करता है। और बहुत कम लोगों ने बर्कले को जवाब दिया है। उसके इतने स्ट्रांग आर्गुमेंट्स है कि उसका जवाब देना जो है वो बड़ा मुश्किल है। और आखिर में जो है ह्यूम, ह्यूम ने जो थियरी दी है नॉलेज एपिस्टेमोलॉजी में, वो है स्केप्टिसिज्म, तशकीक। उसने माइंड पे भी शक डाला है और उसने सेंसेस पे भी शक डाला है, लेकिन उसका ज्यादा जो शक है वो माइंड पे है। माइंड को क्या पता, इंटेलेक्ट को क्या पता, एक चीज को अपने आंखों ने देखा नहीं है, कानों ने सुना नहीं है, वो क्या चीज है, वो माइंड को जो है कहाँ से समझ आएगी। नॉलेज जो है वो कह रहे बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन जो शक है, जो तशकीक है, जो स्केप्टिसिज्म है डेविड ह्यूम का, इसका मतलब ये नहीं है कि एपिस्टेमोलॉजी में, नॉलेज में हम नॉलेज न करें या नॉलेज पॉसिबल नहीं है। वो सिर्फ ये हमें मैसेज देता है अपनी फिलॉसफी में कि आप लोग केयरफुल हो जाए, हर चीज नॉलेज नहीं होती। ठीक है ना। हम एक बंदा आपको कहते हैं जी फलान गांव में एक पीर है, तो अगर आप फालिज की मरीज है, आप कैंसर की मरीज है, तो वो पीर जब चुप करेगा, दम करेगा, तो आपका कैंसर खत्म हो जाएगा। तो ह्यूम ये कहता है कि यार इस पे शक करो, इसको सच्चा मत समझो, ये गलत हो सकता है। तो आपको नॉलेज में केयरफुल होना है, अपने हर बंदे से नहीं सीखना, अपने हर चीज पे यकीन नहीं करना, क्योंकि नॉलेज जो है ये बड़ी मुश्किल चीज है, ये आसान चीज नहीं है। हर बंदे के पास नॉलेज नहीं है। लोगों के पास जज्बात है, लोगों के पास तबलीग है, लोग प्रीचिंग करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। ठीक है ना। हेड एंड शोल्डर का जो है मार्केटिंग देखो, वो भी तो नॉलेज है ना। इधर से हेड एंड शोल्डर डाल दिया, पेंटीन डाल दिया, उधर से उसके इतने बड़े बाल निकल आए, उधर से वो जा रही है और उसके बाल लहरा रहे हैं और हमें नजर आ रहे हैं। तो क्या ये नॉलेज है? क्या ये मुमकिन है? इज इट पॉसिबल? तो ह्यूम जो है आपको ये सबक देता है कि भाई स्केप्टिसिज्म, तशकीक, फिलोसॉफिकल डाउट, शक करो चीजों पे, फिर आपका नॉलेज जो है वो स्ट्रांग होगा। आई डोंट थिंक दैट यू हैव एनी क्वेश्चन, क्योंकि ये ना आपने नोट्स पढ़े हैं, ना आप लोगों की इतनी कोई गहराई है कि आपको ये चीज़ें समझ आएगी, लेकिन टाइम लगेगा आपको। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। लेकिन ह्यूम पे, लॉक पे, बर्कले पे क्वेश्चन करना जो है ये बहुत बड़े दिल गुर्दी वाली बात है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप नोट्स को पढ़ें और इन लोगों पे जो है विकिपीडिया में, ब्रिटानिका में इनके जो आर्टिकल्स है वो भी पढ़े कि भाई बर्कले कौन था, ह्यूम कौन था, लॉक कौन था। ये बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं नॉलेज की दुनिया में, ये टॉप स्टार्स है। इसी तरह रेशनलिज्म में हमने पढ़ा था प्लेटो को, डेकार्ट को, स्पिनोजा को। तो ये बहुत बड़े बड़े नाम है। तो इनको समझना, इनकी ज़िंदगी के बारे में, इनकी आइडियाज़ के बारे में समझना जो है, ये आपको बहुत एक्चुअल, रियल, ओरिजिनल नॉलेज देगा। तो इनके बारे में पढ़ो। यस, सो दैट्स व्हाई वन हैज टू बी स्केप्टिकल। शक करना बड़ा जरूरी है, वरना हर बंदा रेड बुल को पिएगा तो तबाह हो जाएगा। उनका काम तो बेचना है, उनको तो पैसे कमाना है। सो ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। प्लीज सोने से पहले नोट्स पढ़ो, रेशनलिज्म वाले नोट्स पे पढ़ो और एम्पेरिसिज्म वाले नोट्स पे पढ़ो, क्योंकि कल हम ट्रांसेंडेंटलिज्म और इंट्यूशनिज्म को पढ़ेंगे। तो जब तक इन दो की समझ नहीं आती थी, फिर आपको उसकी भी समझ नहीं आएगी।